Welcome you all once again. Myself Pransu Kumar Pathak. And dear friend, I'm really afraid that how many parts I have to make for this lecture. I don't know, but let's start. But this is really very interesting topic for all of us. According to CSIR and all, we have to understand the basic things of epigenetics in this lecture. So my dear friend, the whole lecture will confine to epigenetics because this lecture is really important for all of you guys. So just it's a because I am starting molecular biology. So you know what is epigenetics? First you have to understand. You know, suppose species A and species B, you have two species, okay, and by the chance both of these species have same genetic composition, same genotype. It means if you sequence both species, they are phenotypically different but genotypically same. But epigenetically, when you will sequence epigenome, okay, so epigenome of both species is different. So for understanding epigenetics, you have to understand histone modification and histone remodeling. So dear friends, this is really very important for all of you guys. So let us start because I have to make this lecture in so many parts. So this is part 1, okay? So let's cover, okay? Let's start. So first we have to understand what is, how are new DNA molecule made. So you all know by the help of replication, because artificially you will made something by the help of PCR, but in vivo, this is in vitro, but in vivo only replication can give rise to a new DNA molecule. So replication is also called as reproduction. Why? Because it is in vivo reproduction. And my dear friends, genes are inherited from one organism to another organism basically through reproduction. By means of reproduction, you know, genetic composition is transferred. Okay, so next question is, how does DNA tell a cell about making protein? ये भी बहुत बड़ी बात है. सेल को कब पता है कि कब हमें कोई प्रोटीन बनाना है, नहीं बनाना है? तो बेसिकली you have DNA and DNA is undergo transcription to give rise of messenger RNA. This messenger RNA undergo translation to give rise protein. Okay, so we are discussing molecular biology, so our main focus is this. But you know, DNA is so large and this DNA should be compacted. So compaction, why we need compaction? Because cell is very small and that much of DNA cannot be regulated in particular cell, you know. So how this all, you know, as example we can take example of human. हमारा सेल ह्यूमन का कितने क्रोमोजोम होते हैं? 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम, और एक्स हुआ तो फीमेल का, ये हुआ सेक्स क्रोमोजोम, और एक्स वाई हुआ तो मेल का. अब सोचो कि इतने सारे क्रोमोजोम्स हैं और अगर सारा डीएनए अगर खोल दें, तो पूरा डीएनए खोल करके अब सोचे कि किसी एक सेल में डालें, तो यू नो समझो कि एक ऊन का वो है, गोला है. अब इसको हम खुला छोड़ दें और जैसे तैसे कर दें तो क्या हो जाएगा? उलझ जाएगा ना. तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइनली ट्यून है बॉडी में. ये बहुत ही स्पेसिफिकली क्या है, इसे अरेंज किया गया है ताकि आपके सेल में सारा का सारा क्रोमोजोम क्या हो, एडजस्ट हो, और डीएनए फ्रिक्वेंटली ऐसे ही एसेस होने लगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए. सो दिस इज वेरी फाइनली ट्यून दैट ए पर्टिकुलर सेल गिव राइज टू अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, है ना. तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, सारा मशीनरी कहीं ना कहीं डीएनए के पैकेजिंग पर भी क्या है, निर्भर करता है. तो सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग पर हम बात कर ले, तब हम ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि डीएनए पैक होता है थ्रू हिस्टोन, और हिस्टोन और डीएनए का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम, और दैट we have to study. So this nucleosome model is epigenetically controlled. So epigenetic means of controlling, we have to understand this point of view also. So dear guys,
अब हम थोड़ा सा कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको इरेज करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो हाउ मच डीएनए इज इन ए जीन और हाउ मच इज इन ए जीनोम। अभी कोई ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी क्लासेस में आपको डिस्कस किया हूँ, तो बताया हूँ आप लोगों को कि अगर ये आपका क्या है, जीनोम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा जीनोम जितना बड़ा है उतना ही जीन हो। कल जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था जीनोमिक डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना, जैसे 3.2 बिलियन जीन, मतलब कि आपके पास बेस पेयर है ह्यूमन में, और ओनली यू हैव 2500 जीन और 300 जीन। अब सोचिए 3000 जीन है या इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन यू हैव, सो ऑब्वियसली योर डेंसिटी विल डिक्रीज। जितना ज़्यादा मतलब आपका कोडिंग रीजन होगा, जितना नॉन कोडिंग और जंक पार्ट कम होगा, आपका क्या होगा, जीनोमिक डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। नाउ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, कैसे जीनोम ऑर्गेनाइज होता है और कैसे किसी सेल के अंदर एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट करके वो सेल के अंदर अच्छे से रहता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर। सो दिस इज अनदर important task that genome sequencing is also important. Why genome sequencing is important? You all know. अगर आपके पास जीनोमिक इंफॉर्मेशन होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरा जीनोम सीक्वेंस या पूरा उनकी चीज़ें आपके पास होंगी, तो आपको उनकी हर डिजीज मैकेनिज्म को या ड्रग बनाना है तो ड्रग डिस्कवरी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, rather in plant, rather in animal or any other organism, within any model organism, which I have already discussed. If you don't know about model organism, go on my YouTube channel and there is already a video regarding the model organism. So dear friend, this is all about the first slide which I am discussing. So first, this particular point I have taken from Lodis. So this is your nucleus and this is interphase chromosome. You know, इंटरफेज क्रोमोजोम और मेटाफेज की क्रोमोजोम में क्या अंतर होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। इंटरफेज में क्या होता है, ऊन का धागा खुला हुआ नजर आ रहा है ना, तो योर जीन इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, बट एट मेटाफेज क्रोमोजोम यू कैन काउंट। कैरियोटाइपिंग कहाँ किस किस स्टेज पे होती है, हमेशा मेटाफेज पे होती है, क्योंकि मेटाफेज पर क्या होता है, क्रोमोजोम बिल्कुल क्या होता है, एलाइन हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, ताकि यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी chromosomes are there. So I am not going to discuss here cell cycle and cell division and all. So just you have to understand that in each and every cycle the chromosome and orientation of chromosome is also very important, means the topology of chromosome is really very important. Okay, so let's begin. कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, क्रोमोजोम है। जब हायर ऑर्डर ऑफ क्रोमाटीन है, फोल्डेड है, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, 30 nm का फाइबर बना, फिर ये आपका क्या है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर से फिर धीरे 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 आपका न्यूक्लियोसोम बीड आपको आया, और ये न्यूक्लियोसोम बीड से जब हिस्टोन प्रोटीन हट जाएगा तो आपका सिर्फ डीएनए बचेगा। सो दिस इज द बेसिक फंडा हाउ। और अगर उल्टा चलें, सपोज आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ पेन टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। So if you go from this is your DNA. If it is wrapped with the nucleosome, so it is when it is bind to the histone, it will form a nucleosome, and then chromatin and so on and so forth, it will come into a chromosome. So this is the cycle, है ना, कैसे DNA एसेस होगा और कैसे DNA ब्लॉक होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे एक क्रोमोजोम की तरफ जाएगा, इसकी जो जीन की एसेसिबिलिटी होगी क्या होगा, कम जाएगा, यानी जीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हिस्टोन के थ्रू क्या हो जाएगा, अंदर पैक हो जाएगा, तो जीन की एसेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे या आप इधर की तरफ आएंगे, जैसे जैसे अगर हिस्टोन हट जाएगा, हिस्टोन हटते ही क्या होगा, आपका जीन फ्री हो जाएगा, और नाउ योर जीन इज एबल टू फंक्शन एंड RNA पॉलीमरेज कैन बाइंड एंड योर फर्दर प्रोसेस विल टेक प्लेस।
सो दिस इज बेसिक फंडा टू अंडरस्टैंड गाइज। सो पूरे लेक्चर में हम लोग यही करेंगे, कहीं ना कहीं से न्यूक्लियोसोम को हटाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से जो बचा हुआ जीन का रीजन है उसे एसेस करने की कोशिश करेंगे, और असेसिबिलिटी हमें डिसाइड करेगी कि कैसे वो जीन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो मेन मेरा लेक्चर का मोटो है, इसमें कवरअप क्या करेंगे, क्रोमाटीन क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियोसोम। सो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस अ लॉट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So you all know DNA is a molecule that is hereditary material in all living cell in general point of view. क्यों? क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्या है, hereditary material is RNA as like viruses. Okay, so our next point, gene consists of enough DNA to code one or code for one protein or RNA, ना? And genome is simply the sum total of an organism DNA. ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी डीएनए है पूरा टोटल वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। और डीएनए क्या होता है, एक पीस, वो फ्रैगमेंट जो कि प्रोटीन कोड करे या फिर प्रोटीन बनाने के रेगुलेटरी फैक्टर्स को बनाने में मदद करे। that is already you know that regulatory RNA and transfer RNA, ribosomal RNA, these all RNAs, what this is also controlled by several genes. So whether your DNA is going to code a protein or regulatory part, so regulatory part is also very important. So gene consists of both, it can code for protein or maybe other RNAs. Okay, so let's come to the next point. So dear friend, we have to differentiate both. What is the basic difference between gene and genome? So gene is a part of DNA molecule. Okay, it's already a fragment, DNA fragment, and genome is the total DNA in a cell. जीन क्या होगा, किसी डीएनए फ्रैगमेंट होगा, और जीनोम क्या होगा, पूरे सेल के अंदर जितना भी डीएनए हो। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में आपको और भी क्लियर करेंगे। ठीक है, एंड हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑल सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। और यहाँ पे अगर ह्यूमन में आ जाएं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी आप ऐड करेंगे, और प्लांट में जाएंगे तो दोनों क्लोरोप्लास्ट के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर जीनोम, दिस ऑल थ्री सेट्स फॉर्म द जीनोमिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। इनकोड प्रोटीन सिंथेसिस में भी मैक्सिमम जो हमारा जो जीन है वो प्रोटीन कोड करता है, और मे बी इट कैन हेल्प यू टू मेक ए रेगुलेटरी फैक्टर्स। ओके, सो इनकोड बोथ प्रोटीन एंड रेगुलेटरी एलिमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो जीन है आपका, जीन तो बेसिकली आपको क्या करेगा, जो जीन है वो फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन जीनोम में और भी कई ऐसे हैं जो जंक डीएनए है, वो जंक नहीं है। 80% of the human genome is junk DNA, but that DNA is also very important because I have already covered that non-coding RNA, that the regulatory RNA is always synthesized from that part of genome. Okay, so length is about few hundred base pair to kilo base pair. बहुत ज़्यादा जीन होगा तो 2.3 KB का होगा, 5 KB का होगा, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज स्ट्रेच होगा। एंड लेंथ ऑफ जीनोम जो होगा वो पार्टिकुलर स्पीसीज का सबसे बड़ा फ्रैगमेंट होगा, है ना। हायर ऑर्गेनिज्म हैज अबाउट थाउजेंड्स ऑफ जीन, है ना। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तो जीन, मैंने बोला था ना, जीन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है ना। ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन जीनोम, but this is not right, but it is only for diploid organism. Okay, I will discuss in upcoming slides also about that. Okay, variations of gene, variation of the gene named as allele can be naturally selected, but horizontal gene transfer and duplication cause large variation in the genome. जैसे कि मैंने कल ही बताया था, स्यूडोजीन जब बनता है, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर आप लोग पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे, कंजुगेशन पढ़े हैं, है ना। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, दिस ऑल आर हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर टेक्निक्स।
ओके। और डुप्लीकेशन क्या होता है, आपको मैंने कल ही बताया था कि डुप्लीकेशन के दरमियान क्या होता है, अगर जीन फंक्शनल कॉपी नहीं बना पाता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, स्यूडो जीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो जीन होते हैं उनके अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि कोई भी क्रोमोजोम का क्या होगा, दो होगा ना, अल्टरनेट फॉर्म होगा। अगर जैसे वाई क्रोमोजोम छोड़ दिया जाए, जैसे मेल में होता है एक्स वाई, तो ये तो अलग अलग हो गया। लेकिन जब फीमेल में देखें तो एक्स क्रोमोजोम भी होमोलोगस क्रोमोजोम है। पेयर ऑफ जो क्रोमोजोम के फैक्टर्स होंगे वो होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाएंगे। और होमोलोगस क्रोमोजोम पे क्या होगा, एक लोकस होगा, और जिस लोकस के अल्टरनेट फॉर्म में अलील होगा जो कि पार्टिकुलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होगा, ठीक है। और यह अलील डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है ना। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हम आगे चलते हैं और इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज जीन, which I have already discussed. So a gene is a locus or sequence stretch of DNA polynucleotide strand. It encodes an amino acid sequence of a specific protein and is recognized as a molecular unit of heredity. The genetic instructions transfer its progeny via reproduction. I have already told you कि जो हेरिडेटरी फैक्टर हैं एक ही तरीके से ट्रांसफर होते हैं, वो क्या है, मीन्स क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ जीन कैन बी फाउंड विद इन ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इन हायर ऑर्गेनिज्म, है ना, विथ डिफरेंट प्रमोटर्स। इसीलिए हम आपको ये भी कल बताए थे कि हमारा जो यूकैरियोट्स है उनमें क्या होता है, हर जीन के लिए एक अलग प्रमोटर होता है। इसीलिए मोनोसिस्टोनिक वे में हमारे बॉडी में क्या होता है, यूकैरियोट्स में सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। बट प्रोकैरियोट्स के साथ ऐसा नहीं है, एक साथ कई सीक्वेंस एक साथ ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, मगर ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक डीएनए मॉलिक्यूल पे कई जीन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। सीक्वेंस is transcribed into RNA and RNA is translated into protein which constituted determine a trait. This is also called as central dogma of molecular biology. Okay? चलिए, now nitrogenous base is the part of nucleotide. अगर डीएनए पढ़े होंगे और हमसे पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, हम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना, दैट कैरी ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बस बेसिकली आप जब भी जाते हो एनसीबीआई पे, जैसे आपको मैंने दिखाया है, एटीजीसी के अलावा कुछ मिलता है आपको, कुछ नहीं, बस यही तो मिलता है। और यही जब आपस में आयरन होते हैं तो सबसे पहले ए टी जी सी ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और समझिए कि जैसे कि आपको मिला ए मैसेंजर आरएनए में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू और ए ट्रिपल कोड करेगा आपको जाकर के फिनाइल एलेनिन। सो देख रहे हैं ब्यूटी, ये डीएनए था, ये आरएनए हो गया और आरएनए से फिनाइल एलेनिन एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड कोड हो रहा है और सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड इज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड और इस तरीके से प्रोटीन बनता है, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आपको रिकैप कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ। और आपको बताना है कि 1 जीन 1 प्रोटीन किसने बोला था, कमेंट करना है 1 जीन 1 प्रोटीन। और आज क्या होता है 1 जीन 1 प्रोटीन, इस पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि हाँ मैंने लिखा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन and its pattern of inheritance originated with the finding of Mendel in 1960s, sorry 1860 में ही सब कुछ हो गया था, क्योंकि मेंडल ने सब कुछ दे दिया था आपको, क्योंकि जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न देने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो वो मेंडल साहब थे, ठीक है। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जीन और ग्रुप ऑफ जीन इज रेफर्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या, जीन और ग्रुप ऑफ जीन की प्रॉपर्टीज ही तो पढ़ते हो भैया, कि यह जीन है तो क्या करेगा, यह जीन है तो कैसे आएगा, ये डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, कैसे फंक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जीन की स्टडी जेनेटिक्स, चाहे आप जीन पढ़ो या ग्रुप ऑफ जीन पढ़ो, वो क्या होगा, जेनेटिक्स के अंदर आएगा, ठीक है।
So most genes are made up of DNA, obviously, and few made up of RNA, because some of the organism have RNA as a genetic material. That example is viruses. Some viruses are made up of RNA genes since their genetic material is RNA. Okay, सारी चीजें लिखी गई हैं, आप अच्छे से धीरे धीरे ध्यान से देखो. In prokaryotes, operon are formed by grouping the functionally related genes. This is very important. So the multiple protein coding sequence are transcribed together, that is the polycistronic nature. Okay, but in eukaryote, gene is mainly composed of two regions. मैंने आपको बताया था, और चलिए फिर से एक बार आपको बताते हैं. ठीक है, आपको अच्छे से समझने के लिए ये तो समझना पड़ेगा आपको. मैंने बताया था दोस्तों कि जब आप देखोगे कोई भी जीन को उठाओगे तो दो चीजें होंगी. एक तो CDS होगा, और नहीं पता तो आप जाकर के हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर्स को देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया. ठीक है, ये हो गया CDS, जो कि स्टार्ट में होगा इसका ATG सीक्वेंस एंड स्टॉप इज TGA, दैट इज UGA. UGA को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करना है. ठीक है, जेनेटिक कोड तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, इसलिए उस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. बट ये क्या हो गया 5 प्राइम UTR, और ये क्या हुआ 3 प्राइम UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस होल इज योर cDNA. So cDNA contain all these things, but your coding region is only this, which will give rise to a particular protein. ठीक है, तो एक होता है, तो यहाँ आपको यहाँ पे 5 प्राइम UTR में या 3 प्राइम UTR में आपको क्या मिलेंगे? रेगुलेटरी सीक्वेंस मिलेंगे, और कोडिंग सीक्वेंस कहाँ मिलेंगे आपको? ये CDS. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाइए. So multiple protein coding sequence are transcribed together, that is polycistronic, but eukaryotic gene is mainly composed of two regions, coding sequence and regulatory sequence. Eukaryotic coding sequence consists of exon and intron and untranslated region, which I have already discussed, whereas prokaryotic gene lacks intron. But बहुत सारे ऐसे eukaryotic genes हैं जिनमें इंट्रॉन नहीं होते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. आपको अभी हमारे साथ साथ काम करना है, ताकि हमको बहुत इफिशिएंट बनना है, बहुत अच्छी जानकारियाँ लेनी है. और एक अच्छा जानकार वही होता है जो हमारे सिर्फ वीडियो पे नहीं वेट करेगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेगा, अच्छी अच्छी हमें भी बात बताएगा कि भैया यहाँ पे आपने गलती किया है. ठीक है, तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, जीन्स आर ट्रांसक्राइब विद इंट्रॉन. ठीक है, कंसिक्वेंटली दे आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग. सो स्प्लाइसिंग होती है mRNA में, और फिर वो मैच्योर mRNA बनता है. ठीक है ना, स्प्लाइसिंग पढ़ाएंगे. ठीक है, RNA स्प्लाइसिंग कैसी होती है, कैसे कैसे क्या होता है, कितने तरह के RNA स्प्लाइसिंग होते हैं. RNA ही कई तरह के होते हैं, तो स्प्लाइसिंग भी कई तरह के होंगे. ठीक है, ऑन द अदर हैंड मल्टीपल प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. जब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगा तो एक ही mRNA होगा. समझो कि 4 एक्सॉन है, 1 2 3 4. अब क्या हुआ 1 3 4, एक बनाया 2 3 4, एक बनाया 1 4, एक बनाया 1 3. तो इस तरीके से कई प्रोटीन बन सकते हैं जब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी तो. और इसे हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में भी एक आपको दिखाया था ऐसा एग्जाम्पल. सो आपको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अगर नहीं आता है तो थोड़ा वेट कीजिए, आई विल डिस्कस इट ऑल्सो. ओके, सो डियर फ्रेंड, जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल. ऐसा नहीं है कि जीन सिर्फ एक ही जगह रेगुलेट होता है. तो रेगुलेशन का 2 स्थान है, या तो आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट हो. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कौन रेगुलेट करेगा उसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. और ट्रांसलेशन लेवल पे कौन उसको करेगा? वेरियस मॉडिफिकेशन पैटर्न विल लीड्स टू ट्रांसलेशनल gene expression regulation, as for example histone acetylation, deacetylation, phosphorylation, ubiquitination. These all are translational level gene regulation. Okay, so
वेरिएशन ऑफ जीन आर रेफर्ड एज एलील। तो क्या होता है, जीन के जो वेरिएशंस होते हैं, एक जीन के कई वेरिएशंस हो सकते हैं, मोर देन वन एलील भी हो सकता है, 2 एलील हो सकता है, एलीलोमॉर्फ भी हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकती है, मल्टीपल एलील भी एक जीन के अंदर हो सकता है, जिसे हम QTL कहते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई में क्या होता है, एक जीन के कई एलील्स होते हैं, ठीक है। तो अलील के लिए क्या है, अलील माइनिंग की जाती है। कोई जीन के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं जीन के जो वेरिएशंस होंगे वो अलील कहलाएंगे, ठीक है। डिफरेंट अलील ऑफ सेम जीन प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप अमंग द पॉपुलेशन। हाउ इट इज पॉसिबल, देख रहे हैं, डिफरेंट अलील ऑफ सेम जीन, मतलब कि जीन तो सेम है मगर अलील में डिफरेंस हो गया, ठीक है। वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है या हेमीजाइगस है, वो किस पैटर्न में है, ये भी क्या होता है, फिनोटाइप के अंतर को आपको देगा। चलिए, तो आपको समझ में आया, यह है बेसिक फंडा, कैसे एक DNA फ्रैगमेंट, कैसे एक जीन धीरे धीरे कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बनता है। दिस इज योर क्रोमोजोम एंड दिस इज योर DNA, accessible DNA. So in this lecture we have to assess our gene. That is the basic funda. Okay, so let's recap other thing. ठीक है, अब है यहाँ पे what is genome. तो जीनोम क्या है, whole set of nuclear DNA of an organism is referred as genome. whole set, अगर आप ह्यूमंस में लें या एनिमल में लें तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और न्यूक्लियर जीनोम क्या कहलाएगा, उसका जीनोम कहलाएगा, ठीक है। और सपोज आप प्लांट्स ले लेते हैं तो प्लांट्स के केस में क्या हो जाएगा, उनमें क्लोरोप्लास्ट के पास भी, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, है ना। इस पे हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बेसिकली डिस्कस करेंगे एक कैसे हमारे सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए, ठीक है। So most of genome consists of DNA, although some viruses composed of RNA genome. Organelle such as mitochondria and chloroplast composed of their own genome called mitochondrial genome and chloroplast genome respectively. So this is very much important, my guys. So I think you all know about these things. So let's begin with the new story. So यहाँ पे शायद आप लोग अक्सर गलती करते होंगे, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से इसे लिख करके आपके लिए रखा है, ठीक है। यू नो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम कोई और यूज कर लें, चलिए काला यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मीनिंग ऑफ जीनोम इज वेरिएबल इन नेचर। अब ये समझना है आपको कि कैसे वेरिएबल है जीनोम की मीनिंग, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जीनोम कंसिस्ट ऑफ बोथ कोडिंग जीन एंड नॉन कोडिंग जीन, दैट इज द जंक DNA, ओके। The size of genome increases proportionally to the morphological complexity of organism. जितना जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, याद रखो जीन तो कमेगा ही कमेगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना। If your complexity will increase, if you go the higher order of organism, the number of gene will drastically reduce in comparison to the normal small organism like bacteria. बैक्टीरिया में जीनोम साइज देखो और नंबर ऑफ जीन देखो, माइस के अंदर नंबर ऑफ जीन देखो, उसकी साइज देखो। हम लोग 60 की जो केजी के हैं और हमारे में अंदर जीन है मात्र 25,000। ओनली वी हैव 25,000 जीन्स एंड यू कैन सी हियर दैट ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ बिलियन बेस पेयर, बट यू हैव ओनली दैट अमाउंट ऑफ जीन। सो मोस्ट DNA सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन contain the junk DNA. ना DNA polynucleotide chain, है ना, are organized into individual chromosomes. The human genome is composed of 22 homologous pair, that is autosomes, and 2 sex chromosomes. In male that is XY and in female that is XX in the case of human. I am not going to discuss sex determination. I will not go into other Z0 ZZ, सो ये सारा सेक्स डिटर्मिनेशन में आएगा, जब वहां पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच हैज सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम, समझो सिंगल कॉपी है जीनोम का तो उसे क्या कहेंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एज लाइक स्पर्म एंड ओवम आर हैप्लॉइड सेल, है ना, स्पर्म भी तो है, ओवम भी तो है, तो ये क्या है, ये हैप्लॉइड जीनोम है, बिकॉज
इनके पास क्या है, सिंगल कॉपी है। लेकिन जो ऑटोजोम्स होते हैं, जैसे हम एक्स बात करें, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक्स होगा, है ना, और दूसरा एक्स नहीं होगा, क्योंकि 2n नहीं है, ये n है। समझो कहानी, और समझ भी रहोगे तुम, बच्चा नहीं हो, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो मारेंगे भी, ठीक है। ह्यूमन जीनोम इज डिप्लॉयड इन नेचर। जब दोनों मिल जाएंगे तो जाइगोट क्या हो जाएगा, जाइगोट या तो XX होगा या XY होगा। तो यहाँ पे जब सेल की बात करेंगे, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो यहाँ पे स्पर्म ओवम के लिए जीनोम क्या है, N है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, 2n जीनोम है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट्स एज कंपेयर टू द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल और गैमेटिक सेल में यही तो अंतर है। अगर गैमेटिक सेल डिप्लॉयड हो गया तो समझो हम लोग क्या हो जाएंगे, 2n प्लस 2n, यू विल रिजल्ट इनटू 4n, टेट्राप्लॉयड हो जाओगे। तो भगवान ने क्या किया, गैमेट को हैप्लॉयड बना दिया। जब गैमेट हैप्लॉयड हो गया तो भैया दोनों मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो रिजल्टेंट विल बी 0। हम हैं 2n, गैमेट है n, दोनों मिलेगा 2n, फिर हम आएंगे, फिर जाएंगे, तो n और 2n का जर्नी चलता रहेगा। बट ऐसा नहीं है, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कहानी बहुत अलग है। चलिए पढ़ते हैं। A genome of a unique organism is referred as a genetic makeup of that particular organism. उस particular organism का जीनोम उसी से निर्भर करता है और किसी से नहीं। The human genome was fully sequenced and mapped by Human Genome Project. So my dear friend, you have to go and search about Human Genome Project. I am not going to discuss a lot here. ठीक है, चलिए आपका एक काम है, आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, द हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर एंड डुप्लीकेशन, है ना, डुप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस काउजेज जीनोम इवोल्यूशन। मैंने कल भी बताया था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे होता है, डुप्लीकेशन से होता है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन कैन, है ना, डुप्लीकेशन ऑफ जीन क्लस्टर, शॉर्ट टैंडम, होल क्रोमोजोम और इवन इंटायर जीनोम, है ना। जीनोम मिक्स इज द स्टडी ऑफ genome of that related organism. ओके, समझ में आई कहानी? सॉरी, तो एक चीज यहां पे और आपको थोड़ा बताऊं, ठीक है, कि जब कह रहे कि होल सेट जो इंटायर जीनोम है वही बदल जाएगा, तो व्हीट के केस में क्या हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। तो हेक्साप्लॉइड हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पे हेक्साप्लॉइड हो गया, तो समझ रहा है इंटायर जीनोम ही क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, है ना, ट्रिप्लॉइड, तो क्या है, प्लॉइडी बढ़ गई, जीनोम ही डुप्लीकेट हो गया पूरा का पूरा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो पूरी स्टडी, अब व्हीट की स्टडी करनी है तो हेक्साप्लॉइड जीनोम आपको स्टडी करना पड़ेगा, नॉट कि डिप्लॉइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा बेसिक फंडा था कि कैसे जीन है, इंटरजेनिक रीजन, है ना, और जीनिक रीजन, ये सारा चीज कैसे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जीनोमिक्स। सो जीनोम स्टडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ these all. So I'm not going to discuss these again and again things. Okay, so importance of studying genetics, you can stop. I know you can know more than that. डिजीज ट्रीटमेंट में, ह्यूमन की हिस्ट्री जानने में, फोरेंसिक लैब में, है ना, और मान लिया जाए कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हो, है ना, पेरेंटल डिस्प्यूट्स हो, जेनेटिक इन्हांसमेंट करना हो, कंपैरेटिव जीनोमिक्स स्टडी करना हो, तो बहुत सारी बातें आप कर सकते हो और हमसे ज़्यादा जानकार हो इस मामले में। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें थोड़ा बेसिकली बात करना है किस पे, जीन पे, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज टर्म्ड एज अलील, है ना। अल्टरनेट, किसी जीन के अल्टरनेट पे क्या है वो क्या कहलाएगा, उसका अलील कहलाएगा, और वो किसी न किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। ईच जीन दैट individual receive an allele from
each one of the parent, one from father, one from your mother, है ना. Thus 2 allele for each gene, that autosome and X chromosome in the case of female. अगर फीमेल होती है, देखिए समाज की एक विसंगति भी बता दूं आपको, खैर ऐसा तो अब नहीं होता, बहुत लोग जानकार हैं, बट पहले ऐसे लोग कहते थे जो मेल चाइल्ड जो होता है वो किसका देन है, भाई वो मेल का देन है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम बस मेल के पास है एंड फीमेल हैव ओनली एक्स. इफ दैट एक्स क्रोमोसोम विल गो एंड बाइंड टू दैट एक्स क्रोमोसोम, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आने वाला चाइल्ड जो होगा वो मेल हो जाए. सो भैया आप आज से अगर दिमाग में अगर आपका ऐसा कीड़ा है भी तो हटा दो कि जो मेल है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेल इन द केस ऑफ ह्यूमन के केस में. इसीलिए जो माता और बहनों के साथ ऐसा होता है तो मुझे बहुत दुख होता है. अभी भी गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया, और ऐसा कुछ भी कहानी होता है. बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट कर रहा, मगर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को पर्सनली हर्ट करने का या कुछ इस तरह की बातें करने का. मगर इस तरह की बातें होती हैं समाज में तो बहुत दुख होता है कि जो उसके लिए है नहीं फिर भी हम लोग उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन मेल पार्टनर, ओके, नॉट ऑन द फीमेल पार्टनर. सो इसको समझने के लिए और डिटेल में जाते हैं. एक है पापा वाला क्रोमोसोम और एक है मम्मी वाला क्रोमोसोम. तो ये क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, चलिए ये हो गया होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. चलिए अब क्या है, ये क्या है जो आप देख रहे हो वो लोकस है. उस लोकस के अल्टरनेट में आप जो देख रहे हो वहां पे क्या मिलेगा आपको, अलील मिलेगा. हमने नहीं लिखा यहाँ पे ए लिख सकते थे या कुछ और भी नोटेशन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने दिया कि जो ए अलील है वो क्या है, लॉन्ग हाइट के लिए है और ए शॉर्ट हाइट के लिए है. तो यहाँ पे लॉन्ग हाइट है तो यहाँ पे कैपिटल टी दे दें और यहाँ पे क्या डाल दें, स्मॉल टी डाल दें. ठीक है, हमको डाल देना चाहिए था मगर मैंने डाला नहीं, आप अपने से डाल लो. ठीक है, अलील फॉर वाइट फेयर और ब्लैक फेयर. तो वाइट के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू लिख लेते हैं और इसके लिए स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म हुआ इसे हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे. ठीक है, और ये अलील अगर वेरिएशन होगा, इन अलील में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, अलील में वेरिएशन होगा तो फिनोटाइप बदलेगा. सपोज ये भी तो केस हो सकता था, जो ए लॉन्ग है ये भी लॉन्ग हो जाए, अगर कि मम्मी का भी टॉल और पापा का भी टॉल, तो आने वाला प्रोजेनी पक्का टॉल है ना. लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है. हेट्रोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस होने का किसी का चांस क्या है, 50% है, और होमोजाइगस होने का चांस ओनली 25% है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म. और इसको अगर समझना हो तो चलो इसको समझा देते हैं तुमको. चलो, एक कैपिटल ए है, ये स्मॉल टी है. ठीक है, अब बताओ भैया कि कैपिटल ए आने का, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल टी है ना, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी. कभी कभी देखो जेनेटिक्स के हम चचा बन जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, चलो, तो कैपिटल टी जब इससे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, जब इससे इसको क्रॉस करेंगे तो, और ये क्या है, ये भी ए फॉर्मेट में भी आ सकता है ना, दोनों मेल फीमेल, सॉरी ये कैपिटल टी यहाँ ले लो, दोनों हेट्रोजाइगस में लो तो ऐसे बनेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और यहाँ पे होगा स्मॉल टी. ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है. ठीक है, हम खुद कबूल रहे हैं. ठीक है, तो इसको अच्छे से करो क्योंकि तुम लोग सब जेनेटिक जानते हो इतना. ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ओनली कितना आएगा, 25% आएगा, लेकिन हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन हमेशा कितना आएगा, 50% आएगा. तो हेट्रोजाइगस फॉर्मेट मिलना आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगस फिनोटाइप विल मैक्सिमम. ओके, चलिए अब आपको सबको पता है कि जब मेटाफेज के क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ए आपको मिलेगा. ठीक है, ये हो गया एक सिंगल पेरेंट का क्रोमोसोम, चाहे मेल का या फीमेल का, और ये हो गया मेल फीमेल दोनों का. एक पेरेंटल है और एक मैटरनल है, दूसरा
पैटर्नल क्रोमोजोम है, ठीक है, दोनों है। और ये मेटाफेज पर क्या होता है, क्रोमोजोम बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर में दिखता है, क्रोमाटिड बहुत अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। तो क्रोमोनेमाटा क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ठीक है, पी आर्म क्या होता है, क्यू आर्म क्या होता है, ये सब आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने डिस्कस किया है मगर आपको अच्छे से आता है मुझे मालूम है, ठीक है। और अब चलते हैं थोड़ा हम लीवेने के बारे में बात करते हैं। आप चारगैफ को तो जानते हैं ना, इरविन चारगैफ। चारगैफ रूल क्या बोलता है, ए पेयर विथ टी एंड सी पेयर विथ जी, ये जो रेशियो है बराबर होता है, ठीक है। लेकिन शुरू में क्या था, जब ये थे तो सबसे पहले इन्होंने बताया था केमिकल नेचर एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि जो प्यूरिन है और पैरामिडीन है वो दोनों 50-50% में होता है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसीलिए इनकी थ्योरी जो थी वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। बट हाँ, जो सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर बताए थे इरविन चारगैफ से भी पहले कौन आया था, लीवेने आया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा, क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसका यूज किया गया, ये आप पे मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या करेंगे, दूसरे लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द पार्ट 1। जस्ट वेट, आई विल स्टार्ट पार्ट 2।